اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خدا وند متعال نے سورہ فاتحہ کو اور سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم اپنا کلام کر رہے تھے. یہ سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے جس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، جس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. اگر اس صورت کے موضوعات دیکھیں جائے تو موضوعات اس صورت کے تقریباً وہ 7 آیات ہیں. ان 7 آیات میں مختلف موضوعات بنتے ہیں. مثلاً پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت میں اللہ کے نام سے ابتدا کرنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ ساری چیزیں، ہر ایک چیز کی ابتدا وہ اس میں الہی سے ہونی چاہیے. ہر چیز کی ابتدا وہ اللہ کے نام سے ہونی چاہیے. پہلا یہ موضوع ہے. دوسرا ہر کلام کا سرنامہ اور ابتدا وہ خدائے لم یزل کی ذات ہے. ساری چیزوں کی بازگشت وہ اللہ رب العزت کی طرف ہے. دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین، یہ آیت ہے اس بات کا درس دے رہی ہے کہ تمام نعمتوں، تمام موجودات کی تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے. ہر حمد کی بازگشت، ہر حمد کا منبع، ہر حمد کی ابتدا اور انتہا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. خداوند متعال کے لیے ہے حمد و ثنا. اس اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں. ان تعریفوں کا محور اور تمام تعریفوں کا سزاوار وہ خدائے لم یزل کی ذات ہے. الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے عالمین کے رب کے لیے. عالمین کا رب ہے، اس جہان کا بھی اور دوسرے عالمین کا بھی خداوند متعال وہ رب ہے. الحمد للہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، پیدا کرنے والی ذات. ربوبیت وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے. یہ دوسری ہوگی. تیسری الرحمن الرحیم، یہ اس بات کا تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد وہ رحمت پر ہے، اور دنیا کا نظام اسی کے ساتھ مربوط ہے. ہر قانون کی بازگشت رب العزت کی طرف ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص انسیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، یہ اس کا تیسرا ہو گیا، بسم اللہ چوتھا ہو گیا. یہ آیت معاد کے اوپر دلالت کرتی. مالک یوم الدین، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن اعمال کی جزا و سزا کا دن ہو گیا. اس دن حاکمیت وہ فقط اللہ کی ہوگی. وہ جو رب دنیا میں جانے جاتے ہیں، جو دنیا میں ربوبیت کے قائل بنتے ہیں، جو دنیا میں رب بنے بیٹھے ہیں، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن انسان کی اعمال اور اس کی نیکیوں کو پرکھا جائے گا.
मालिक यौमिद्दीन से मुराद यह है कि एक ऐसा दिन आने वाला है कि जिस दिन मलकियत जो है, हाकमियत जो है, उलूहियत जो है वो फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी। उस दिन सारी चीज़ों ने पलट के अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। जैसे हम कोई फौत हो जाए तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम लौट के अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। तो मालिक यौमिद्दीन एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हर एक की नेकियों को परखा जाएगा, हर एक की बुराइयों को परखा जाएगा। क़यामत का दिन होगा जिस दिन नफ्स नफ्सी का आलम होगा। ये कुरान कह रहा है कि ये वो ऐसा दिन है कि जिस दिन माँ बाप जो है वो अपनी औलाद से दूर हो जाएंगे, औलाद माँ बाप से दूर हो जाएगी, बहन भाई का नहीं होगा, बहन भाई बहन का नहीं होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा। तो यहाँ सूरत अलहम्द में खुदावंद मुताल कुरान के अवाइल में बता रहा है कि एक ऐसा दिन आने वाला है तुम्हारे ऊपर कि जिस दिन फ़कत हाकमियत मुझ अल्लाह की होगी, मेरे अलावा कोई हाकिम नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो जज़ा व सज़ा दे सके। पांचवी चीज़ जो है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, ये तौहीद इबादती का बयान है और इंसानों के लिए अकेले मरकज़ का तज़किरा है कि जो सब का आसरा और सहारा है। यानी इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। यानी इबादत के लायक अल्लाह के अलावा कोई और शख्सियत नहीं है, कोई और ज़ात नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए, कोई और चीज़ें नहीं हैं कि जिसकी तरफ इबादत का रुझान हो। व इय्याका नस्ताईन, और मददगार जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इय्याका नअबुदु, ए मेरे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी ही इस्तिआनत चाहते हैं, तेरी ही मदद चाहते हैं। तो अल्लाह की इबादत के साथ साथ खुदावंद मुताल इस सूरह अलहम्द में, अलहम्द की इस आयत में ये बता रहा है कि इबादत के सज़ावार भी मैं हूँ और मदद व मुईन का सज़ावार भी मैं हूँ, मेरे अलावा इबादत के लायक कोई और नहीं है। फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के ये आयत बंदों की हिदायत और इश्तियाक हिदायत को बयान करती है। ये आयत इस तरफ भी तवज्जो दिलाती है कि हर किस्म की हिदायत जो है वो अल्लाह की तरफ से है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी एक रास्ता ऐसा है। और ख़ुद खालिक लम यज़ल ने जब शैतान को रंगाए दरगाह करार दिया तो उसने क्या कहा कि मैं तेरे बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। सिरात मुस्तकीम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जिसके ज़रिए इंसान जो है वो अबदी ज़िंदगी पा लेता है। कि सिरात मुस्तकीम, हिदायत वाले रास्ते पर चलकर इंसान जो है वो अबदियत को पा लेता है, आखरत को पा लेता है, उखरवी ज़िंदगी को पा लेता है। ये दुनिया जो है ये चंद दिन की मेहमान होती है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़िंदा रह सकता है? आजकल जो ओवर एज बन रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70, हद कोई 80 तक चला जाए। तो यानी मौत के बाद वाली ज़िंदगी, अगर तुम सिरात मुस्तकीम पर चलते रहे हो, अगर तुमने अल्लाह के रास्ते को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए अबदी ज़िंदगी है, तुम्हारे लिए सिरात मुस्तकीम भी है। सिरात मुस्तकीम भी है। सिरात मुस्तकीम एक ऐसी है कि जिन लोगों को अल्लाह ने इनाम दिया है, जिनके ऊपर अल्लाह ने अपना इनाम बख्शा है। और सूरह की आखिरी आयत है अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सिरात मुस्तकीम पर जो चलेगा अल्लाह उसको इनाम देगा, अल्लाह उसको नेमतें देगा, अल्लाह उसको नेमतों से नवाजेगा। और मेरे अल्लाह, ये आखिरी जो आयत है ये एक दुआ है कि ए मेरे अल्लाह हमें उनमें से करार न दे कि जो गुमराही के रास्ते पर चले गए। तो यहाँ से पता चला कि जो लोग अल्लाह की सिरात को छोड़ देते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते को छोड़ देते हैं, वो सीधे गुमराही में चले जाते हैं। इसी सिलसिले में
ایک हदीस भी मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद आलम का इरशाद है कि मैंने सूरा हम्द को अपने और अपने बंदों के दरमियान तकसीम किया है, लिहाजा मेरा बंदा हक रखता है कि जो चाहे मुझसे मांगे। जब वो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो मैं बुज़ुर्ग बरतर अल्लाह इरशाद फरमाता हूँ कि ए मेरे बंदे, मेरे नाम से इब्तदा की है, इस बंदे ने मेरा नाम लिया है, मुझ पर लाजिम है कि जिस चीज़ की ये इब्तदा कर रहा है मैं उसमें खैर बरकत डालूँ, मैं उसमें अपनी रहमत डालूँ, उसमें बरकतें अता करूँ। और जब वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे तूने मेरी हम्द व सना की है, तो जो नेमतें मैंने तुझे अता की हैं वो नेमतें मुझ अल्लाह की तरफ से तेरी तरफ गामज़न रहेंगी, उनमें कोई यानी ठहराव नहीं आएगा। तो अब यहाँ से ये चीज़ हमारे लिए वाज़ेह हो गई कि सूरह अल-हम्द एक ऐसी सूरा है कि जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह के साथ ख़ास हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इंसान के साथ ख़ास हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं कि जो आलमीन का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान भी है, रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, कोई और मालिक नहीं है। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन, हम तो इससे ही मुईन चाहते हैं, हम तो इससे ही मददगार चाहते हैं, हम तेरी ही मदद के तलबगार हैं। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, ए हमारे अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। तो सीधी राह पे वही चलेगा जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो अल्लाह के अहकाम को मानेगा, तो वो सिरात मुस्तकीम पर चलेगा। तो जो सिरात मुस्तकीम पर चलेगा अल्लाह उनको इनाम देगा, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देगा, अल्लाह उनको बरकतें देगा, अल्लाह उनके आमाल को कबूल फरमाएगा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उन लोगों के रास्ते पर कि जिनके ऊपर ज़ालिन हैं, जो गुमराही में, यानी जो शख्स सिरात मुस्तकीम को छोड़ देता है, जो अल्लाह की इताअत नहीं करता, जो अल्लाह की इताअत से अपने आप को मोड़ लेता है, तो गोया उसने क्या किया, उसने सिरात मुस्तकीम को छोड़ दिया। और जो सिरात मुस्तकीम को छोड़ देता है वो सीधी गुमराही में चला जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह की इताअत की जाए। अल्लाह की इंसान जितनी जितनी इताअत करता जाएगा, अल्लाह की जितनी जितनी बंदगी करता जाएगा, तो खालिक दो आलम जो है उसके लिए उतनी उतनी बरकतें उसमें डालता जाएगा। और फिर ये फ़कत दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, उखरवी ज़िंदगी के लिए है कि जो शख्स सिरात मुस्तकीम पर अमल करता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था लफ्ज़ी तर्जमे के साथ सूरह हम्द का। यानी इस सूरत के 7 आयतों में 7 मौजू हैं कि अल्लाह की इताअत भी इसी में है, अल्लाह की हम्द भी इसी में है, अल्लाह की सिरात का ज़िक्र भी इसी में है। अल्लाह जो क़यामत का दिन बपा होगा कि जिस दिन तमाम को कब्रों से उठा के अल्लाह के रूबरू पेश किया जाएगा, उसका ज़िक्र जो है वो अल्लाह इब्तिदाए कुरान में कर रहा है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि इबादत का लायक, इबादत जो है वो फ़कत मेरी है, इबादत का सज़ावार भी मैं हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और हम कितने खुश नसीब हैं शियान हैदर करार कि हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो ये कहता हुआ नज़र आता है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अली तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता और ना तेरी इबादत दोज़ख के डर से करता हूँ, बल्कि मैं अली तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक इबादत है। तू वैसा अल्लाह है जैसा मैं अली चाहता हूँ, जैसा मैं अली चाहता था मुझको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो हम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। तो मेरे पहले इमाम
यही इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ कि अल्लाह लय की इबादत है। तो लय की इबादत जो ज़ात है वो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वही अल्लाह है जो क़यामत का मालिक है। क़यामत का दिन कौन सा दिन है कि जिस दिन हर एक को नफ्स नफ्सी का आलम होगा। खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाएगा कि इनके सामने इनके नामाए आमाल रखे जाएं, और फिर जब इंसान अपने नामाए आमाल को देखेगा तो परेशान हो जाएगा और देख कर कहेगा ये क्या है, ये तो मैंने किया भी नहीं है। तो कहा जाएगा जो तूने कुछ सोचा है, जो तूने कुछ किया है, वो तेरे सामने रखा गया है। और फिर अल्लाह कितना अजीम और कितनी बाबरकत ज़ात है कि जिसने हमारे कंधों पर जो करामन कातिबीन रखे हैं, उनमें भी अल्लाह जो नेकी करने वाला, जो नेकी लिखने वाला है, जब हम इरादा करते हैं तो अल्लाह कहता है फ़ौरन लिख ले, करे ना करे वो बाद की बात है। लेकिन जो बुराइयां लिखने वाला है, हम इरादा करते हैं, अल्लाह कहता है नहीं लिखो। हम वो काम कर भी लेते हैं, अल्लाह फिर भी कहता है, कई घंटे लग जाते हैं, अल्लाह कहता ना लिखो, हो सकता है मेरा बंदा तौबा कर ले। तो खुदावंदे मुतआल जो है वो पहली सूरा में, कुरान की इब्तिदा में, सूरह फातिहा में बता रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुमको लौट के मेरे पास आना है, और उस दिन का मालिक मैं हूँ। उस दिन मेरे अलावा किसी की भी नहीं होगी, और मैं ही उस दिन का मालिक हूँ, मैं ही जज़ा और सज़ा दूँगा। और फिर अल्लाह से आगे दुआ ये कर रहे हैं कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मेरे अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है कि जो अल्लाह का रास्ता है, जो चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का रास्ता है, उसी को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। और फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। क्यों? इसलिए कि जो बंदा सिरात मुस्तकीम पर चलता है, जो बंदा सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहता है, उसके लिए अल्लाह ने अपने यहाँ इनाम रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह उन इनामात को भी ज़िक्र करेंगे, और खुदा से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह जो है वो हमें ज़ालीन में से करार न दे, जो गुमराह है उनमें से करार न दे। तो गुमराह कौन है? जो सिरात मुस्तकीम से भटके हुए हैं। खुदा किसी को भी सिरात मुस्तकीम से न भटकाए, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम से नहीं भटकाए।